الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں جناب مظہر قادری صاحب کا اور میرے سارے ناظرین کا اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موت ایک حقیقت ہے۔ دنیا میں بہت سارے مذاہب کے ماننے والے ہیں لیکن موت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ ایک ایتھیسٹ، ریشنلسٹ، کمیونسٹ جو مذہب کو نہیں مانتا، جو خدا کو نہیں مانتا، لیکن وہ بھی اس بات پر مجبور ہے کہ موت کی حقیقت کو تسلیم کر لے۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب تک ایک آدمی موت کا مزہ چکھتا نہیں ہے اس کو موت کیا ہے پتہ ہی نہیں چلتا، اور ایک آدمی اگر موت کا مزہ چکھ چکا ہے تو وہ اس قابل نہیں ہے کہ زندہ لوگوں کو بتائے کہ آخر موت کیسی ہوتی ہے۔ نتیجے میں انسان بے چارگی کی حالت میں ہے اور انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ روح نکلتے وقت انسان پر کیا حالاتیں بیتتی ہیں۔ تو ہم محتاج ہیں ایک ایسی کتاب کی طرف جو موت کے پیدا کرنے والے کی طرف سے نازل ہو، اور وہ اگر سچی کتاب اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو وہ قرآن مجید ہے۔ تو قرآن مجید جو کہ موت کے پیدا کرنے والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اس قرآن مجید کے اندر موت کے بارے میں کافی تفصیلات ہمیں ملتی ہے۔ تو انشاءاللہ آج میں آپ کے سامنے قرآن مجید اور صحیح احادیث اور دیگر مذہبی کتابوں کے بدرود پڑھنے پر حوالے دے کر آپ کے سامنے حقائق واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور ایک اہم پوائنٹ ذہن میں رکھیے، ہم اپنی فیوچر پلاننگ کرتے ہیں لیکن ہماری فیوچر پلاننگ انکمپلیٹ ہے۔ اگر ہم صرف 60 سالہ زندگی جب تک ہم جیتے ہیں اگر صرف اسی کی پلاننگ کرتے ہیں تو گویا کہ آپ نے اپنے فیوچر کو سمجھا ہی نہیں۔ ہمارے فیوچر میں موت بھی آنے والی ہے، ہم سب کے فیوچر میں قبر کے حالات بھی آنے والے ہیں، ہم سب کے فیوچر میں برزخ کے حالات، قیامت کی ہولناکیاں اور اسی طرح قیامت کے حشر اور نشر کے سارے حالات آنے والے۔ تو اگر ہم اپنے فیوچر کی پلاننگ کریں تو مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہونے والا اس کے بارے میں بھی سوچنا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو انشاءاللہ آج ہمارے لیے بہترین موقع ہے کہ اس بارے میں انشاءاللہ ہم سوچیں گے۔ شکریہ مدنی صاحب۔ ناظرین، سب سے پہلے کالر لائن پر موجود ہیں اور انہیں پروگرام میں شامل کرتے ہیں، جانتے ہیں ان کا سوال۔ ہیلو ہیلو ہلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم کون اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں ویلور تمل ناڈو سے بات کرتا ہوں مظہر بھائی، ڈاکٹر رسول سید ناصر بات کرتا ہوں۔ جی جی رسول سید صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے سید ہیں؟ ناصر صاحب جی جی سب خیریت ہے؟ جی اللہ کا احسان ہے، دعائیں ہیں آپ حضرات کی۔ اور مولانا کو میری طرف سے آداب و سلام سنانا۔ وعلیکم السلام۔ کچھ نہیں مظہر بھائی، انسان زندہ رہتا وقت جی اگر ایک جگہ دفن ہونے کی خواہش کرتا ہے، جی 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 خواہش کرنے کے بعد مرنے کے بعد وہ اس انسان جو خواہش کرتا ہے اس کی خواہش اگر پوری نہیں ہوتی ہے دوسری جگہ دفن کر دیا جاتا ہے۔ جی یہ دفن کرنے والوں کے اوپر اس کا وبال ہے اچھا جی، یا مرنے والے کے اوپر کچھ پوچھ ہے؟ یہ سوال میں پوچھنا چاہتا تھا۔ بہتر صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ویلور تمل ناڈو سے ہمیں کال کیا۔ جی دعاؤں کے ہم خواستگار ہیں آپ سے، آپ کے بھی سوال ہمارے کا لیے جواب دعا ہم مدنی صاحب سے دیتے ہیں۔ جی، مدنی صاحب کیا فرماتے ہیں تدفین سے متعلق وصیت؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی ایک سوال آیا ہے کہ تدفین سے متعلق وصیت کا جہاں تک معاملہ ہے، وصیت کو اسلام نے کافی توجہ دی ہے۔ اگر آپ پڑھیں گے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 11 اور 12 اور سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 183 183 کے اندر وصیت کے بارے میں کافی تفصیلات ہمیں ملتی ہیں۔ اور وصیت کو پورا کرنے کے لیے ایک انتقال اگر ہو جاتا ہے تو اس میت کے جو 4 حقوق ہوتے ہیں، پہلا حق یہ ہے کہ اس کے مال میں سے تجہیز و تکفین کے جو اخراجات ہوتے ہیں وہ نکال لیے جائے۔ پھر اس کے بعد دوسرا مسئلہ آتا ہے جو قرض ہوتے ہیں ان قرضوں کو ادا کر دیا جائے، اور تیسرا یہ ہوتا ہے کہ جو وصیت ہوتی ہے اس وصیت کو پورا کیا جائے۔ چوتھے مرحلے میں یہ ہے کہ ترکے کا مال تقسیم کیا جائے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ قرضہ باقی رہتا ہے، وصیت باقی رہتی ہے، اس سے پہلے ہی لوگ ترکے کو بانٹنے کی بات کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، جہاں تک وصیت یہ ہے کہ فلاں جگہ پر تدفین ہونے کی وصیت کی جاتی ہے۔ تو ایسے وقت پر اگر جو ورثاء ہیں اور جو اقربا ہیں جو زندہ ہیں، اگر ان کے پاس قدرت بھی ہے پھر بھی اگر وہ لوگ وصیت پوری نہیں کرتے تو ایسے وقت پر ان کے لیے مناسب نہیں ہے، کیونکہ اصل جو وصیتیں ہوتی ہیں وہ وصیتیں ہوتی ہیں جس کی وہ طاقت رکھ سکے، لیکن
بعض औक़ात उज़्र की बुनियाद पर, या है कि जहां पर वसीयत की गई वहां पर इतनी बारिश पड़ी कि वो जमीन इस काबिल ना रही, तो ऐसे वक्त पर सूरह बकरा के अंदर बताया गया आयत नंबर 183 के अंदर वसीयत में तब्दीली भी की जा सकती है अगर शरीयत गुंजाइश दे। तो बहरहाल इस रोशनी में आपने जो सवाल किया है, मुझे पता नहीं कि वहां पर हालात कैसे पेश आए। दो हालात भी हो सकते हैं कि वसीयत बदलने की तक भी गुंजाइश है अगर वो शरीयत से टकरा जाती है वसीयत, या है कि वसीयत पूरा करने के लिए शरई एतबार से कुछ ऐसा उज़्र लाहिक हो जाए, तो ऐसे वक्त पर वसीयत पूरी की जाना जरूरी नहीं है। एग्जैक्ट वहां पर क्या हालात है मुझे पता नहीं है, जनरल मैंने आपको उसूल दे दिया, इसकी रोशनी में आप मसला हल कर सकते हैं। उम्मीद आपका जवाब मुकम्मल हो। शुक्रिया मदनी साहब। नाज़रीन और एक कॉलर लाइन पर मौजूद हैं, जानते हैं इनका सवाल। हेलो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह खैर शेख, आप लोगों का बहुत बहुत अच्छा दीनी माहौल बना के जो कुरान सुन्नत की रोशनी में जैसे आप लोग प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, जिसके लोगों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रहा है, शिर्क व बिदअत से काफी दूर रह रहे हैं लोग। अल्लाह आपको जज़ा खैर दिए दुनिया और आखिरत में। जी आमीन। और एक सवाल है जी कि इंडिया के अंदर, जब मैं शहर जगतियाल का रहने वाला हूँ, करीमनगर डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश का। जी आपका इसमें क्या? फिल वक्त मैं सऊदी अरब भाई से बात कर रहा हूँ। मैयत को दफनाने के बाद में लोग जो है सो हिंदुस्तान में जी क्या करते हैं, सूरह बकरा पढ़ते हैं, सूरह फातिहा पढ़ते हैं, सूरह बकरा पहली रुकू और आखिरी रुकू, और प्लस जो है सो कुल अल्लाह कुल औज़ु बिल फलक पढ़ के दुआ करते हैं। क्या ये जायज है क्या? और एक सवाल है कि मरने के बाद लोग जो है सो खबर पे जाकर जो है सो, यानी आम खबर, दरगाह पे नहीं, वहां पर जाके फूल चढ़ा के वहाँ उसकी मैयत की इसाले सवाब के लिए जो है सो सूरह फातिहा और सूरह बकरा पढ़ते हैं। क्या इससे जायज है क्या? बेहतर भाई, आपने अपना नाम पोशीदा रखा, बताया नहीं। अच्छा, नाम मेरा मोहम्मद साबिर है, साबिर सऊदी अरब साहब। भाई से बात कर रहा हूँ। एक हदीस की वजाहत चाह रहा हूँ मैं। जी एक शहीदुल शोहदा के टाइम पे जैसे शहीदुल शोहदा जो है जंग उहद के दौरान, जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 साल के बाद जैसे वहां पर जाके जब नमाज जनाजा पढ़ी थी, सही मुस्लिम सही बुखारी की रिवायत है। जी जी लेकिन 8 साल का जो मामला है उसमें ब्रैकेट में दिया गया है। जी तो क्या ये वजाहत कीजिए कि क्या ये जायज है क्या? मैं अब यहाँ सऊदी अरब से जाने के बाद मेरे दोस्त अहबाब जो इंतकाल कर जाते हैं, तो मैं जाके उनकी खबर पे जाके नमाज जनाजा पढ़ सकता हूँ क्या? बेहतर साहब, बहुत शुक्रिया साबिर साहब, आपने हायल सऊदी अरब से कॉल किया। आपके तीनों सवालात के जवाबात मदनी साहब अता फरमाएंगे। मदनी साहब, हुबूर पर जो तदफीन का जो तरीका है, जो कुरानी आयात पढ़ी जाती हैं इससे मुताल्लिक और फूल वगैरह से मुताल्लिक भाई ने जो सवाल पूछा है, इसकी वजाहत फरमा दीजिएगा। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई ने बुनियादी तौर पर 3 सवालात किए हैं, और जो जनरल यानी भाई का कहना यह है कि बिदात और शिर्क के बारे में, तो मैं के मालूमात के लिए इत्तला के लिए बताऊं कि मैंने इंटरनेट से जो मैंने ब्राउज की है मालूमात, तो फिलवक्त दुनिया के ममालिक में, चाहे मुस्लिम ममालिक हो गैर मुस्लिम ममालिक में, जहां पर मुसलमान पाए जाते हैं, तदफीन के वक्त बहुत सारी बिदातों का वो लोग इर्तिकाब कर रहे हैं। मैंने सिर्फ 1 घंटे के अंदर जो बिदातों को मैंने इकट्ठा किया, सूडान में, मिस्र के अंदर, सीरिया में, मुख्तलिफ जगहों पर, खासतौर से बर्रे सगीर में, तो सिर्फ बर्रे सगीर और कुछ ममालिक जो अरब के हैं, सूडान, मिस्र के, 140 बिदातें हैं जो कि मुसलमान कर रहे हैं, और कई सुन्नतें हैं जो हम छोड़ रहे हैं। अगर जरा मामला उलट कर लिया जाए कि जो सुन्नतें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैं, अगर हम उसको भरपूर तरीके से तवज्जो के साथ करेंगे तो नेमतें और बरकतें हमारे हिस्से आएंगी। बिदअतों से अपनी जिंदगियों को खाली करने की जरूरत है। पहला सवाल यह है, जो पहला और दूसरा सिमिलर है, वो ये है कि कब्र के पास जाकर कुल के सूरे पढ़ रहे हैं या सूरह बकरा की शुरू की आयतें और आखिरी आयतें, जो अहादीस इस दिमन में बयान की गई हैं वो अहादीस ऑथेंटिक नहीं है। सूरह बकरा के शुरू का हिस्सा पढ़ते हैं, 5 आयतें और आखिरी की 2 आयतें पढ़ी जाती है, ये हदीस ऑथेंटिक नहीं है। कुछ अगरचे के किबार जो स्कॉलर्स हैं कदीम जमाने में, उन्होंने उसको ऑथेंटिक कह दिया, नतीजे में वो चीज फैल चुकी है। लेकिन हकीकत तो ये है कि जो मुहद्दिसीन जो डेप्थ में जाकर जिन्होंने तहकीक की है, उसके बाद उन्होंने नतीजा निकाला है कि ऑथेंटिक नहीं है। लिहाजा कुरान मजीद कब्रिस्तान में जाकर पढ़ने से अपने आप को बचाना चाहिए। अलबत्ता वो जो दुआएं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित है, अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर अनतुम सलफुना व नहनु बिल असर व नसअलुल्लाह लना व लकुमुल आफिया व इन्ना इंशाअल्लाहु बिकुम ललाहिक़ून, ये जो दुआएं हैं यही इसमें इंशाअल्लाह बहुत ही खैर व बरकत है। इसी पर हमको इत्तेफा करना चाहिए। और जहां तक आपका भाई ने तीसरा सवाल किया है जो खबरों से मुताल्लिक है, सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस कोट करते हुए कि 8 साल के बाद, जो आपने वाकया कोट किया है बिल्कुल सही वाकया है। जहां तक जनाजे की नमाज का मसला है तो ये फर्ज़े किफाया है, यानी कि वाजिब और फर्ज में आता है लेकिन किफाया है, फर्ज़े किफाया है। अलबत्ता कुछ है जिनको मुस्तस्ना करार दिया गया है, जिनकी नमाज जनाजा पढ़ना फर्ज नहीं है, पढ़ना जायज है। पढ़ना फर्ज नहीं है, पढ़ना जायज है। मिसाल के तौर पर शुहदा जो शहीद होते हैं अल्लाह की राह में, शहीद हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्लाह की तरफ से तो रहमतों और बरकतों में है। उसके बावजूद भी अगर हम नमाज जनाजा पढ़ते हैं तो जायज है। लेकिन ऐसे भी वाकयात मिलते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे शुहदा पर आपने नमाज जनाजा नहीं पढ़ी। तो शुहदा उहद के बारे में आपने 8 साल के बाद पढ़ा, तो इससे एक मसला यह निकलता है कि अगर कुछ लोगों को इत्तला नहीं मिली, बाद में इत्तला मिली किसी के इंतकाल करने की, तो वो लोग अगर
पढ़ना चाहे नमाज जनाजा, अगरचे कि नमाज जनाजा पढ़ी जा चुकी है तो वो लोग भी पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं इस हदीस शरीफ की रोशनी में। लेकिन आपको सऊदी अरब से हिंदुस्तान आने की जरूरत नहीं है, आप सऊदी अरब में रहकर भी गायबाना नमाज जनाजा पढ़ सकते हैं, इसलिए कि सही और ऑथेंटिक हदीस के अंदर जो मुस्तदरक में भी मौजूद है, मुआविया अल-लैसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जब इंतकाल हुआ तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी नमाज जनाजा गायबाना पढ़ाई। ये ऑथेंटिक वाकया है, इसकी रोशनी में आप सऊदी अरब में रहते हुए भी नमाज जनाजा पढ़ सकते हो। उम्मीद कि आपका जवाब मुकम्मल हुआ। जी शुक्रिया मदनी साहब। नाज़रीन, सवालात का सिलसिला यकीनन जारी रहेगा। आप और हम मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। आज आप हमसे गुफ्तगू कर रहे हैं, उन्वान मौत कफन दफन से कब्र तक के उन्वान पर आप बात कर रहे हैं हमसे। नाज़रीन, इस सिलसिले में आप हमें SMS कर सकते हैं, अपने सवालात पूछ सकते हैं। इसके लिए आप टाइप कीजिएगा AAH स्पेस अपना सवाल, अपनी नेक तमन्ना, अपना और अपने शहर का नाम और इसे रवाना कीजिएगा 3690 पर या 600606 पर, और आलमी व्यूअर्स जो है 4412 पर अपने SMS रवाना कर सकते हैं। इस ब्रेक के बाद पहले कॉलर से बात करते हैं। हेलो जी, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी मोहतरम, फारूक और जालना से। फारूक साहब जालना से। हाँ जी फारूक साहब बताइए, क्या सवाल है? मुफ्ती साहब से पूछना है जी ये आजकल लोग जो एकदम सुसाइड कर रहे हैं, जी खुदकुशी कर लेते हैं, जी जी और उसके बाद फिर जब हम संवारते उनको जी तो उनके आंख पे सिर्फ गुसल का पानी डाला जाता। जी ये चाहे जली हुई केस हो या फिर रेल में जो आदमी कट जाता है, जी जी उसके बाद फिर आपको इसकी जनाज़े नमाज़ पढ़ानी चाहिए या नहीं चाहिए? जी बेहतर फारूक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया जालना से। आपके सवाल का जवाब जानते हैं मदनी साहब से। मदनी साहब, भाई ने जो सवाल किया है, जो खुदकुशी के केसेस होते हैं या हादिसात का जो शिकार होते हैं, इनकी नमाज जनाजा से मुताल्लिक भाई ने सवाल किया है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई ने जो सवाल किया है, इस सवाल के दो पहलू हमारे सामने आते हैं जिसकी मैं वजाहत कर देना चाहूँगा। एक तो सवाल यह है कि खुदकुशी करने वाले, पहले इस्लामी एतबार से इसका क्या हुक्म है? हराम है। चाहे आप जिहाद के पर्पज से या इस्लामी एतबार से कोई भी मकसद से अगर आप करते हैं, अपने आप को आप खुदकुशी कत्ल नहीं कर सकते, क्योंकि आप अपने नफ्स के और जान के मालिक नहीं हैं। सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 29-29, वला तक़्तुलू अनफुसकुम, खुदकुशी मत करो, खुदकुशी करना हराम है। दूसरा ये है कि खुदकुशी करते वक्त या जो जल जाते हैं, सुसाइड हो जाते हैं, पूरा जिस्म जल जाता है, नहलाने का मसला आता है, पूरा जिस्म इतना जला हुआ है कि अगर आप पानी डालें तो बाद वक़्त होता यह है कि वो और भूरा भूरा होने के चांसेस होते हैं या बह जाने के चांसेस होते हैं। तो ऐसे वक्त पर जिस्म का वो हिस्सा जो जला हुआ ना हो, बिल्कुल साबित हो, तो उसको आप कपड़े से पोंछ दे सकते हैं, एक माने में वही गुस्ल हो जाएगा। और जो हिस्से पर जहां पर पानी नहीं जा सकता तो वहां पर आप तयम्मुम कर देंगे। तयम्मुम का तरीका यह है कि जो नहलाने वाले या जो वहां पर होते हैं वो हाथ मारेंगे जमीन पर और हाथों को और चेहरे को मल देंगे। इस तरीके से इतना ही गुस्ल उनके लिए काफी है। और जहां तक आपने कहा कि नमाज जनाजा पढ़ी जाए या ना पढ़ी जाए, खुदकुशी अगर किसी ने की हो तो ऐसे वक्त पर या इसी तरीके से शराब पीने वाला, बड़े बड़े गुनाह करके मर जाने वाला, बागी, तो ऐसे सारे लोगों की नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी, लेकिन पढ़ाने वाला कोई सरबरा या ज़ी असर शख्सियत या वहां का मारूफ शख्स ना हो, बल्कि कोई आम पढ़ा ले, ताकि लोगों के जहन में आ जाए कि पनिशमेंट है इन लोगों के लिए, ताकि दोबारा दूसरे लोग ऐसी हरकत ना करें। अलबत्ता एक मसले की वजाहत में कर देना चाहता हूं। अब अगर कोई पूछेगा, मैदान जिहाद में बाद औकात जो लोग सुसाइड कर लेते हैं, तो अगर किसी ने कर लिया है तो उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, उनका मामला अल्लाह के हवाले, कि उन्होंने जो समझा कुरान और सही हदीस की रोशनी में उन्होंने उस पर अमल किया। लेकिन एक शख्स सुसाइड बॉम्बिंग करने के लिए आकर हमसे पूछेगा तो हम कहेंगे ये तरीके पर मत जाइए। उम्मीद कि आपका जवाब मुकम्मल हो। शुक्रिया मदनी साहब। नाज़रीन, और एक कॉलर लाइन पर मौजूद हैं। हेलो 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 हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम मोहतरम। जी मैं आसिम बात कर रहा हूँ हजरत निजामुद्दीन दिल्ली से। जी आसिम साहब, क्या हाल है? जी, खैरियत से हैं? आप लोगों का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है माशाल्लाह। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। जी आमीन आमीन। जी आसिम साहब, क्या सवाल है आपका? जी सवाल हजरत ये है कि अभी मौलाना साहब ने जैसे बताया कि कब्रों के ऊपर कुरान शरीफ नहीं पढ़ना चाहिए जाकर के। जी 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 बताइए। और क्या मतलब ये है कि जैसे हम 16 सूरह या 5 सूरह लेकर के जाकर के जैसे मरहूमीन के लिए हम अपना दुआए मग़फ़िरत की वगैरह वगैरह पढ़ते हैं वहाँ जाकर के, तो ये जायज है या नाजायज है? अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आसिम साहब, आपने दिल्ली से। एक सवाल और है हजरत, ये है कि नमाज जनाजा के अंदर जी 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 कुछ लोग हाथ छोड़ के सलाम फेरते हैं और कुछ हाथ बांध करके सलाम फेरते हैं। जी बेहतर बेहतर तो इस इससे रिलेटेड कोई मतलब बताएं। और एक हमारी वालदा को मतलब मुर्दे ज्यादा नजर आते हैं ख्वाबों के अंदर। जी बेहतर बेहतर, ये बात का भी इजाला किया जाएगा। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आसिम साहब, आपने हमें कॉल किया। मदनी साहब, भाई ने 3 सवाल तकरीबन किए हैं, तो इनके जवाब अता फरमाएं। सबसे पहले कि वो जो कुरान क़ानी जो होती है क़ुबूर पर, या और दूसरा जो मसला है ख्वाब में मुर्दे ज़्यादा नज़र आते हैं, इस तरह की बात है जी।
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई ने बेसिकली बुनियादी तौर पर 3 सवाल किए हैं। पहला सवाल यह है कि पंजसूरा या कुरान मजीद या पारे हाथ में लेकर कब्रिस्तान में जाकर पढ़ना। तो मैं आपको बुनियाद बताता हूँ, शरीयत इस्लाम की बुनियाद, ताकि आपको समझने में मदद मिले कि जो भी अकीदा और कोई भी खालिस इबादतें जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम के ज़माने में ना हो, वो काम हमको नहीं करना चाहिए। सहाबा इकराम भी खबरों की ज़ियारत के लिए कब्रिस्तान जाया करते थे, क्योंकि वहां जाने से हमको नसीहत मिलती है, वहां जाने से आखिरत आती है, मौत से आदमी को खौफ होता है, नतीजे में अपने अमाल को दुरुस्त करता है, उसमें जो मरे हुए हैं, मय्यत हैं, उनको दुआ भी मिल जाती है। तो जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम जाते थे तो वो लोग वहां पर कुरान में पढ़ते थे, इसकी कोई दलील नहीं। अलबत्ता दुआएं मौजूद है, वो दुआ पढ़ दीजिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम दी, उसमें बहुत खैर और बरकत है। अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, कम से कम ये पढ़ दीजिए, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, इतना पढ़ दीजिए कम से कम। बाकी की दुआ याद हो जाए तो और अच्छा है। और उसके बाद आपने दूसरा सवाल किया कि नमाज जनाजा पढ़ते वक्त बाद लोग हाथ बांधकर ही सलाम फेर देते हैं और बाद लोग हाथ छोड़कर, तो इसमें उतना कोई मसला नहीं है। गुंजाइश है, जब आप सलाम फेर ही रहे हैं तो बेहतर है कि जिस हालत में आप हो उस हालत में सलाम फेर दें। और तीसरा आपने सवाल किया कि वालिदा को ख्वाब में मुर्दे और मय्यत हजरात काफी नजर आते हैं, तो ऐसे वक्त पर आपके वालिदा से आप कहें कि दुआ पढ़कर सोएं, दुआएं पढ़कर सोएं, और खास तौर से सूरह बकरा की आखिरी दुआ आयतें और कुल के सूरे इस तरीके से सामने हाथ में रखकर आप फूंक मारें और उसके बाद पूरे जिस्म पे जहां तक हाथ जाए मल लें। और खास तौर से एक दुआ, अगर कोई रात में चमक कर उठ जाए या एक को नींद में अगर परेशानी होती है तो छोटी दुआ है, अल्लाहुम्मा अनिम आईनी, मेरी आंखों को सुला दे, अनिम आईनी व अहदी कल्बी, ऐ अल्लाह मेरी आंखों को सुला दे, व अहदी कल्बी, और मेरे दिल को सुकून अता फरमा। उम्मीद है आपका जवाब मुकम्मल हो। शुक्रिया मदनी साहब। नाज़रीन और एक कॉलर लाइन पर मौजूद हैं। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी मोहतरम, मैं दिल्ली से अमीर अहमद बोल रहा हूँ। दिल्ली से अमीर अहमद साहब। जी जी अमीर अहमद साहब, बताइए क्या सवाल है आपका। मेरा ये सवाल था मदनी साहब से कि जैसा मैंने पढ़ा है जी कि कब्र पे जाने पर अगर सूरह यासीन पढ़ते हैं तो 40 दिन का अजाब उठा लिया जाता है। जी जी। तो क्या कुरान पढ़ना वहां पर जायज है? कब्र के ऊपर खड़े होकर के कोई भी सूरत पढ़ना जायज है वहां पर? और दूसरा सवाल मेरा ये था कि जब मुर्दे को दफना किया जाता है जी तो मतलब फौरन ही उसका हिसाब किताब शुरू हो जाता है? जैसा कि मैंने पढ़ा है फरिश्तों के अजीब हालात में किताब है जी। कि दिन के मुर्दे कुछ नर्म होते हैं और रात के मुर्दे कुछ सख्त होते हैं। दिन के जो फरिश्ते होते हैं वो नरम होते हैं और रात के फरिश्ते सख्त होते जी। हैं। तो क्या ये सही है इस तरीके से कि वो अजाब भी अलग अलग तरीके से होता है क्या? बेहतर साहब, आपके शुक्र को शुबहात को दूर किया जाएगा यकीनन। मदनी साहब से जानते हैं अमीर अहमद साहब क्या जवाब है आपके सवालात का। मदनी साहब ने 2 सवालात पूछे हैं, एक तो कुरान से मुताल्लिक है और दूसरा जो हिसाब किताब से मुताल्लिक है। दोनों सवालात के जवाब अता फरमाएं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बुनियादी तौर पर भाई ने 2 सवालात किए हैं। एक तो ये है कि सूरह यासीन खबर पर जाकर पढ़ना, जहां तक सूरह यासीन पढ़ने का जिक्र है, यहाँ तक कि एक आदमी जिसको अभी मौत यानी उसकी रूह सकरात की हालत है तो उस वक्त पर भी सूरह यासीन पढ़ने का रिवाज पाया जाता है, लेकिन वो हदीस ऑथेंटिक नहीं है। और इसी तरीके से खबर पर जाकर सूरह यासीन पढ़ने का भी ऐसी कोई ऑथेंटिक अहादीस में सबूत नहीं मिलता। तो लिहाजा जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको दुआ बतलाई है, अलबत्ता एक सकरात की हालत में, यानी कि सकरात से पहले की, जो सकरात के बाद तौबा कबूल होने वाली नहीं है, जान करनी की जब हालत हो, उससे पहले एक मरीज जिसके ऊपर आपको मालूम हो जाता है कि अब शायद ये इंतकाल करने वाला हो, तो ऐसे वक्त पर वहां पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लक़िनु मौताकुम बिला इलाहा इल्लल्लाह, कि तुम वहां पर बैठकर ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करो। और मुर्दे से अगर वो समझ में और शोर में हो तो उसको आप कह भी सकते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक आदमी अगर इंतकाल के वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह कह ले और उसकी जिंदगी का अमल अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहे तो उसके हुस्न खातिमे की अलामत है और वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। सुभान अल्लाह। तो ये तो सवाल है, ये सूरह यासीन के बारे में आपने जो कहा, और साथ में आपने दूसरा भी सवाल किया है फरिश्तों के हिसाब से दिन और रात के फरिश्तों से मुताल्लिक बिल्कुल, यानी कि ये कि जब रूह ली जाती है तो रात और दिन के फरिश्तों का ऐसा कोई फर्क सही अहादीस और ऑथेंटिक अहादीस में नहीं है। अलबत्ता ये है कि मैयत के हिसाब से फर्क पड़ेगा। अगर जो इंतकाल होने वाला जो मैयत है वो अगर साले हो, नेक हो, मुस्लिम और साले हो, लेकिन एक मुस्लिम है लेकिन फाजिर और फासिक है, गुनहगार है, और इसी तरह एक गैर मुस्लिम है, तो ऐसे वक्त पर अहादीस में बताया गया है कि 2 कैटेगरी के लोग होंगे, एक नेक मुस्लिम और दूसरी कैटेगरी में आएगा कि वो मुसलमान जो कि गुनाह में रहेगा, जिंदगी भर बड़े बड़े गुनाहों में रहेगा, नेक कामों में पीछे रहेगा, और गैर मुस्लिम। इन दोनों के रूह खींचने की नौयत बिल्कुल अलग रहेगी। इंशाअल्लाह मैं इसके डिटेल आपको बताऊंगा तो आपको और भी मसाइल मालूम हो जाएंगे। और ठीक है, फरिश्ते दिन रात का तो यही बता ठीक है। नाज़रीन और एक कॉलर लाइन पर मौजूद हैं, जानते हैं इनका सवाल क्या है। हेलो हेलो। हाँ हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरम, कौन और कहाँ से? जी मैं पटना से खुर्शीद अनवर बोल रहा हूँ। पटना से खुर्शीद अनवर साहब। जी जी, क्या हाल है पटना में मौसम का? जी अल्हम्दुलिल्लाह आज तो
کچھ بہتر ہے موقع. اللہ کا احسان. جی خورشید صاحب بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی ہمارا سوال ہے مولانا کو ہمارا سلام لائق کہنے. جی آپ کا سلام مولانا یقیناً لیتے ہیں. جب آپ سلام کرتے ہیں تو مولانا اس کا جواب یقیناً دیتے ہیں. جی جی اچھا السلام علیکم. مردوں کے لیے قرآن خوانی کی جاتی ہے جی, کیا اس کا ثواب مردوں کو ملتا ہے؟ اچھا جی, قرآن خوانی کے فوائد بتائیں. بہتر صاحب, بہت شکریہ خورشید صاحب, آپ نے ہمیں کال کیا پٹنہ سے. ناظرین سوالات کا سلسلہ جاری رہے گا, یقیناً جوابات دیے جائیں گے. آپ کے ایس ایم ایس بھی ہمیں موصول ہو رہے ہیں, ایس ایم ایس کے بھی جوابات دیے جائیں گے. پھر بھی آپ ایس ایم ایس ہمیں روانہ کرنے کے لیے ٹائپ کیجیے گا اسپیس اپنا سوال یا اپنی نیک تمنا, اپنا اور اپنے شہر کا نام, اور اسے روانہ کیجیے گا 3690 پر یا 600606 پر. اور عالمی ناظرین ہمیں 4412 پر اپنے ایس ایم ایس روانہ کر سکتے ہیں. تو ناظرین بھائی کے سوال کا جواب ہم دیں گے, لیکن لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. ناظرین وقفے کے بعد پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام آپ اور ہم میں. وقفے سے پہلے بھائی نے خورشید صاحب نے پٹنہ سے کال کیا تھا, مردوں کے لیے قرآن خوانی اور ایصال ثواب سے متعلق پوچھا ہے. اور اس سوال میں ایڈ کرتا ہوں مدنی صاحب وہ منظر بھی بتائیں یا ہولناکی بتائیں جو موت سے پہلے آتی ہے یا موت کے بعد جو میت پہ طاری ہوتی ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی نے جو سوال کیا ہے ایصال ثواب سے متعلق, اسلام میں بنیادی طور پر دو کانسیپٹ پائے جاتے ہیں, ایک ہے ثواب جاریہ اور دوسرا ہے ایصال ثواب. کئی لوگ اس دونوں میں فرق نہیں کر پاتے اور اس کے کچھ اصول اور ضابطے ہیں جو شرعی اعتبار سے پورے کرنا ضروری ہے. ثواب جاریہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک انسان مرنے سے پہلے اپنے لیے ثواب جاری کر کے جاتا ہے. اس میں وہ انسان خود اپنے لیے جاری کر کے جاتا ہے. مثال کے طور پہ اگر وہ علم والا ہے تو اپنے علم کی اتنی باتیں پھیلا دے گا, اتنے شاگرد بنا دے گا, اتنے کیسٹ اور اتنی کتابیں, مرنے کے بعد بھی وہ کتابیں پڑھی جائیں گی, اس کو ثواب ملے گا. دوسرا یہ ہے کہ وہ صاحب اولاد ہے تو اپنے لڑکے کی اتنی اچھی تربیت کرے گا کہ اس کے انتقال کے بعد بھی لڑکا اچھے کام کرے گا, تو خود بخود والدین کو بھی اس کا ثواب ملتا چلا جائے گا. اور تیسرا یہ ہے کہ اس نے کوئی ایسا کام کر دیا, رفاہی کام, کہیں بورنگ کھدوا دی اور کہیں پر مسجد بنوا دی, کوئی اچھا دعویٰ سینٹر قائم کر دیا. جب تک وہ دعویٰ سینٹر اور مسجد قائم رہے گی, وہ بورنگ اور کنواں قائم رہے گا, اس کو ثواب ملتا رہے گا. یہ اس کو کہتے ہیں ثواب جاریہ, جو ثواب جاری ہے جس کو انسان نے خود کریٹ کیا ہے مرنے سے پہلے. ایصال ثواب کہتے ہیں کہ مر جانے کے بعد کوئی دوسرا اس میت کے لیے کرتا ہے, ایصال پہنچاتا ہے. اب یہ پہنچانے کا جو کانسیپٹ ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے, لاجیکل. کون سا کام ہے جو پہنچتا ہے نہیں پہنچتا ہم کو نہیں معلوم, کیونکہ ثواب جو اڑ کر تو نہیں جاتا اور ہم کو نظر تو نہیں آتا, تو ظاہر بات ہم کو پتا نہیں چلتا کہ یہ پہنچے گا کہ وہ پہنچے گا. تو ظاہر بات ہے جب تک کہ ہم کو آتھینٹک سورس سے معلوم نہ ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس کام کو قبول کرتے اور کس کام کو قبول نہیں کرتے, ہم اپنی طرف سے کوئی بھی کام نہیں کر سکتے. اور معلوم کرنے کے لیے ہمارے لیے قرآن اور صحیح احادیث سورس ہے جس کے اندر یہ معلوم ہو جائے گا کہ کون سا کام پہنچتا اور کون سا کام نہیں پہنچتا. جب ہم قرآن اور صحیح احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایصال ثواب میں پہنچانے میں آتا ہے سورہ حشر نمبر 59 کے آیت نمبر 9 کے مطابق دعائیں پہنچتی ہیں, مومن کی مسلمان کے لیے دعائیں پہنچ جاتی ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کسی نے قرضہ کسی کے اوپر قرضہ تھا, اس کا بھائی یا کوئی بھی دوست اگر قرضہ ادا کر دے گا تو وہ بھی قرضہ ادا ہو جائے گا. تیسرا یہ ہے کہ اگر کسی نے نظر مانی تھی روزے کی یا کوئی کام کی, انتقال ہو گیا تو زندہ آدمی اس نظر کو پورا کرتا ہے تو یہ بھی ثواب پہنچ جائے گا. اس کی دلیل موجود ہے. اب جہاں تک مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی نماز کو جا رہا, آتے آتے کہے کہ آپ میری نماز پڑھتے آئیے, بالکل غلط بات ہے. ایک آدمی قرآن مجید پڑھ رہا ہے تو آپ اس سے کہیں میری طرف سے بھی قرآن پڑھ لیجئے, بالکل غلط بات ہے. جب زندہ کی طرف سے یہ کام نہیں کر سکتا تو مرنے کے بعد بھی یہ کام نہیں ہو سکتا. قرآن مجید اس کی طرف سے نہیں پڑھ سکتے, کوئی دوسری طرف سے وضو نہیں کر سکتا, تیسرے کی طرف سے نماز نہیں پڑھ سکتا. تو کچھ ایسے کام ہیں جو دوسری طرف سے نہیں کیے جا سکتے. جہاں تک صدقہ اور خیرات کا معاملہ ہے, مالی عبادتوں میں بھی عام طور پر بہت زیادہ ڈھیل دی جاتی ہے, جبکہ ڈھیل نہیں ہے. صرف مالی عبادتیں, خیرات کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ والدین کو اللہ نے کافی اونچا درجہ دیا ہے. لڑکا اور لڑکی کے لیے اجازت ہے کہ والدین کے انتقال کے بعد اگر وہ اپنے مال میں سے کچھ بھی خیرات کرے, نیت کرے یا نہ کرے, دونوں صورتوں میں بھی والدین کو اس کا ثواب جائے گا. لیکن کوئی دوست اور بھائی کی طرف سے نہیں کر سکتے. اور حج بدل کرنا بھی جائز ہے, عمرہ بدل کرنا بھی جائز ہے. یہ ہے ایصال ثواب کا کانسیپٹ. امید ہے آپ کا جواب مکمل ہو. شکریہ مدنی صاحب. ناظرین اور ایک کالر لائن پر موجود ہیں, جانتے ہیں ان کا سوال. ہیلو, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں ریاض الدین رفیع سید بات کر رہا ہوں وجے واڑہ سے. ریاض الدین رفیع سید صاحب, جی جی وجے واڑہ سے بات کر رہا ہوں. جی 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 میرے کو مفتی صاحب سے یہ معلوم کرنا ہے کہ قرآن اور حدیث سے تدفین کا صحیح کیسا کرنا ہے, اس کا میرے کو معلوم کرنا کیا ہے. جی جی. اور دوسری بات ہے, میری ایک گزارش ہے, جی جو آپ کے پروگرام میں آخر میں جو آپ اگر ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کا اگر بتا دیں گے جی تو وقت تو بہت بہتر ہوگا, کہ جو ناظرین نہیں دیکھ رہے ہیں تو پھر ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں تو دیکھ سکتے ہیں. بہتر صاحب, بہت شکریہ بھائی, آپ نے ہمیں کال کیا. رفیع صاحب, ناظرین آپ کو ہم لگے ہاتھوں بتا دیتے ہیں, ہمارا پروگرام ریپیٹڈلی رات میں 11 بجے آتا ہے, 11 سے 12 ہوتا ہے, اور صبح 5 بجے سے 6 بجے تک بھی پروگرام ریپیٹڈلی ریکارڈڈ پروگرام آتا ہے. 2 مرتبہ آپ کی سہولت کے لیے یہ پروگرام دکھایا جاتا ہے.
تو ناظرین بھائی کے سوال کا جواب لیتے ہیں اور ساتھ میں ایک SMS بھی ایڈ کرتے ہیں. کسی بھی مومن مسلم کی توبہ مرنے سے کتنے وقت پہلے تک قبول ہوتی ہے؟ کیا والدہ کی زندگی میں ہی ان سے دودھ معاف کرا لینا صحیح ہے یا نہیں؟ لکھتے ہیں احمد صاحب بنگلور سے. یہ دونوں جوابات عطا فرمائیں. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی نے جو سوال کیا ہے تدفین سے متعلق، بڑی خوشی کی بات ہے کہ نوجوان اور آج ہمارے لوگ تدفین کے بارے میں پوچھیں، کفن کے بارے میں پوچھیں، نہلانے کے بارے میں پوچھیں، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہلانے سے لوگ کترا رہے ہیں غسل دینے سے میت کو، جبکہ بہت بڑا ثواب ہے. کفن دینا بھی بہت بڑی فضیلت ہے، دفنانا بھی بہت بڑی فضیلت ہے. عام طور پر ایک مخصوص علماء کرام یا دینداروں کا حوالے کر دیتے ہیں اور عام نوجوان بس بیٹھے ہوئے اور گفتگو کرتے رہتے ہیں. بہت بڑا اجر ہے. آپ جانتے ہیں نہلانے کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مستدرک الحاکم کی روایت کے مطابق جلد نمبر 2 حدیث نمبر 3354 کے اندر بتایا گیا ہے، اگر کوئی شخص نہلائے گا اور لوگوں کو جا کر عیب ظاہر نہیں کرے گا 40 مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائیں گے. کتنی بڑی فضیلت ہے. دوسری فضیلت سنیے، اگر کسی نے اپنے بھائی کے لیے، کتنے غریب پائے جاتے ہیں آپ یہ اجر کیوں نہیں لیتے؟ حالانکہ کفن کی زیادہ قیمت نہیں ہوتی. اگر کسی نے کسی کے میت کے لیے کفن کا انتظام کر دیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن سندس اور استبرق جو بہترین ریشم ہے دنیا میں، کسی آنکھ نے اس کو دیکھا نہیں ہوگا، کانوں نے اس کے بارے میں سنا نہ ہوگا، دلوں میں کبھی ایسا خیال نہیں آئے گا، اتنا اس بہترین ریشم اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کفن کے بدلے میں پہنائیں گے اس شخص کو. تیسری فضیلت سن لیجئے، تدفین کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، جس کسی نے بھی کسی مسلمان بھائی کو اور تدفین کرنے میں مدد کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب وہ قبر میں جائے گا دفنانے والا، تو قبر کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے بہترین ٹھکانہ بنائیں گے اور عذاب سے اس سے بچاتے ہوئے جنت تک اس کو سکون کی نیند میں رکھیں گے اور نعمتوں میں رکھیں گے. جہاں تک تدفین کا طریقہ ہے، جیسا کہ میں نے کہا 140 بدعتیں ہو رہی ہیں تدفین سے پہلے اور اس کے بعد ملا کر. تدفین کے وقت پر بھی کافی بدعتیں ہوتی ہیں، بہت ساری بدعتیں ہوتی ہیں. وہاں پر لوگ جاتے ہیں قبرستان میں بیٹھ جاتے ہیں، قبروں پر بیٹھ جاتے ہیں. حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبروں پر بیٹھنا گویا کہ جہنم کے آگ پر بیٹھنے کے برابر ہے. قبروں پر نہیں بیٹھنا چاہیے، بے حرمتی نہیں کرنا چاہیے. پھر وہاں پر جاتے ہیں تو بہت سارے بدعتیں کرتے ہیں، عجیب عجیب قسم کے دعائیں پڑھتے ہیں جو کہ ثابت نہیں ہے. کئی دعائیں ایسی ہیں جو ثابت نہیں ہے، پڑھتے ہیں. اور جب جاتے ہیں تو وہاں پر جب دفناتے ہیں تو اندر بہت ساری وصیتیں، دعائیں یا شجر نسب لکھتے ہیں. کسی کے شجر نسب سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. تو یہ اصل ہے، عمل بنیاد ہے. اور جب دفنایا جاتا ہے تو پائنتی کی طرف سے داخل کیا جانا چاہیے، جس کی اپنے تفصیلات ہے. اور جب داخل کیا جائے تو وہاں پر بہت سارے لوگ رنگا روغن اور بہت سارے خوشبو کی چیزیں استعمال کرتے ہیں، یہ تاکہ وہاں پر کوئی قریب میں نہ آئے، کیڑے مکوڑے فلاں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ نے جو کچھ بھی اس سے پہلے نہلاتے وقت پر آپ نے جو کافور وغیرہ رگڑ دیا وہی کافی ہے. تو بہت ساری ایسی بدعتیں ہیں جس کے بارے میں ہم کو ڈیٹیل نالج لینی چاہیے. شاید کہ ہم یہاں پروگرام سے ساری باتیں نہیں بتا سکتے. مدنی صاحب، اس ضمن میں اگر کوئی کتاب ہو جو قرآن اور احادیث کے ریفرنسز ہو کہ تدفین کا طریقہ وغیرہ سب اس میں لکھا ہو تو براہ کرم اگر ذہن میں ہو تو یہ بات بتا دیں. ابھی نہیں تو پھر بعد میں بھی صحیح جیسے بھی ہو. اور احمد صاحب جو بنگلور سے SMS لکھے ہیں اس کا بھی بتا دیں. جیسے کہ میں نے پڑھا تھا کسی مومن کی دعا کب تک قبول ہو سکتی ہے، اور ماں کا جو دودھ کا قرض ہوتا ہے اس کو زندگی میں معاف کروا لینا وہ کیسے ہوتا ہے، کیا ہے؟ بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے. تقریباً جنرل یہ پبلک میں اور عوام میں مشہور ہے کہ سب سے پہلا تو سوال یہ ہے کہ توبہ کب تک قبول ہوتی ہے. اس کے قرآن اور صحیح احادیث کا مطالعہ کرنے کے بعد ہمارے سامنے بات آتی ہے. سورہ نساء سورہ نمبر 4 کے آیت نمبر 18 میں بتایا گیا ہے جب تک غرغرہ موت، سکرات جب طاری ہوتے ہیں، یہاں تک کہ اب غرغرہ موت آ جاتا ہے تو ایسے وقت پر توبہ قبول نہیں ہوتی. جیسا کہ فرعون ڈوب رہا تھا، اس نے کہا کہ اب میں موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب ایمان لا رہے ہو. یہ کوئی ٹائم ہی نہیں ہے. جب موت نظر آ جائے اس کے بعد ایمان قبول نہیں ہوگا. دوسری یہ ہے جب سورج جو مشرق سے نکلتا ہے مغرب سے نکلنا شروع ہو جائے گا، اس وقت پر جو لوگ موجود رہیں گے ان کی بھی توبہ قبول نہیں ہوگی. یہ دو چیزیں ہیں. اور دوسرا ہے کہ دودھ معاف کروا لینے کا نظریہ بالکل غلط ہے. ماں کا اتنا عظیم رتبہ ہے، کوئی معاف ہو ہی نہیں سکتا. ماں باپ کا درجہ اتنا عظیم ہے، اتنا عظیم ہے، ان کا حق آپ معاف کروا ہی نہیں سکتے. اسی لیے اسلام نے کیا کہا؟ والدین کا حق ادا کرو. اسلام نے یہ نہیں کہا کیونکہ تم حق ادا کر ہی نہیں سکتے. وبالوالدین احسانا، جو اچھا کر سکتے ہو وہ کر لو، میں اس کے بدلے میں جنت دے دوں گا. تو اسلام نے احسان کا استعمال کیا ہے. تو یہ معاف کرانا اور اسی طریقے سے بخشوا لینا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. البتہ خدمت کرتے جائیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خوشنودی حاصل کیجیے. لیکن یاد رہے سورہ توبہ نمبر 9 آیت نمبر 24 کے حوالے کے مطابق ماں باپ اگر قرآن اور صحیح احادیث کے خلاف میں کوئی بات بتائے تو اس کے ہرگز اتباع اور اطاعت مت کیجیے. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت غالب ہونی چاہیے. شکریہ مدنی صاحب. ناظرین اور ایک کالر لائن پر موجود ہیں، جانتے ہیں ان کا سوال کیا ہے. ہیلو جی، السلام علیکم. السلام علیکم. جی محترم. جی حسین بول رہا ہوں سر، دہرادون سے. حسین صاحب دہرادون سے. جی جی، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی ہلو، بتائیے آپ کا سوال کیا ہے. ہاں سوال ایسا ہے میرا، ابھی مندی صاحب کو بھی میرا سلام ہو پہلے. جی اور آپ لوگ کا پروگرام بہت اچھا ہے، اس کے لیے آپ ہلو جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے حسین صاحب. جی، تو مجھے بھی مندی صاحب سے کچھ پوچھنا تھا. ابھی انہوں نے 2-3 سوالوں کے جواب دیے جی کہ قبور پہ جا کے یاسین شریف پڑھنا یا
मना आलम ने बताया, जिस तरह से कि मना बताया जी। और हम जाके वहाँ फातिहा पढ़ते हैं, वो भी मना बताया उन्होंने। जी जी। ये कैसी कबूल के लिए कब्रिस्तान में जाके पढ़ना मना है या हम औलिया इकराम की मज़ारों पे जाके पढ़ते हैं वो मना है? अच्छा जी, आप समझ रहे हैं मेरी बात सुनेंगे? जी 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 तो इसमें उन्होंने अभी जो बताया वो मैंने सुना काफी ध्यान से, हो सकता है मेरे कुछ मेरे ज़हन से निकल गया हो जी। तो उसके लिए आप थोड़ा क्लियर होकर बताएं। वो कह रहे हैं कि ऑथेंटिक नहीं है, जी। ठीक है ना? वो क्या है फिर? वो अगर ऑथेंटिक नहीं है तो कैसे करके बिदअत है, शिर्क है, क्या है वो? अच्छा जी, ठीक है ना? क्योंकि जो हम लोग यहाँ पे अपने उलमा से पूछते हैं, उन्होंने बताया कि आप वहाँ जाके पढ़ सकते हैं सब कुछ जी। और मैं हर जुमरात को जाता हूँ वहाँ पे पढ़ने के लिए। अगर वो गलत है तो आप बताएं, और अगर गलत और ये बताएंगे सही क्या चीज़ है, बेहतर वहाँ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, जी। और अगर जाना चाहिए तो किस तरह से वहाँ पे पेश आना चाहिए। बेहतर साहब। एक सेकंड और जी, जी। मम्मी है लाइन पे बात करना चाहती है, जी। ले लीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं वालिदा मोहतरमा? जी बहुत अच्छी हूँ, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत जी। जानकारी हो रही है। जी जी जी, अल्लाह का एहसान है आप लोगों की दुआओं से। मैंने तो ऐसा पढ़ा है कि एक बार यासीन शरीफ पढ़ने से जी। कब्रिस्तान में जाके 10 कुरान शरीफ का सवाब मुर्दों को मिलता है। जी 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 और जितनी तादाद में मुर्दे वहाँ होते हैं कब्रिस्तान में, उसके बराबर पढ़ने वाले को सवाब मिलता है। जी जी आप कह रहे हैं कि वहाँ पढ़ना नहीं चाहिए, जी जी, तो इसलिए मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। लड़के से बात करिए। बेहतर साहब। जी हुसैन भाई, बहुत शुक्रिया, आपने वालिदा मोहतरमा से भी बात करवाई हमारी। आपके सवाल का जवाब यकीनन अभी दिया जाएगा। नाज़रीन, सवालात और जवाबात का सिलसिला यकीनन जारी रहेगा। आपका हमारा खुशगवार साथ यकीनन दोबारा होगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। नाज़रीन, वक्फे के बाद इस प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में आपका खैर मकदम है। अभी थोड़ी देर पहले हमने हुसैन भाई से बात की थी देहरादून से। उनका जो सवाल था कुरान या यासीन शरीफ कबूर पर पढ़ना और औलिया अल्लाह सालिहीन की कबूर पर पढ़ना और आम आदमियों की कबूर पर या कब्रिस्तान में पढ़ना कैसा है, क्या हुक्म है, कुरान और अहदीस की क्या रोशनी हमें मिलती है, ये जानते हैं मदनी साहब से। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी भाई ने सवाल किया और वालिदा मोहतरमा ने भी सवाल किया है और कहा कि हम थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं। बहन, आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल कतई जरूरत नहीं है। ये इल्मी मैदान है जहां पर आप देखते हैं कि बाद औक़ात बाद मसलों में ऐसा होता है, आप किसी एक स्कॉलर से बात सुनते हैं, बाद औक़ात कोई दूसरी बात सुनते हैं, तो ऐसे ऊपर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक उसूल दिया है सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 286 के अंदर, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। आप हत्तल मक़दूर इस्तिताअत लगाकर, मेहनत लगाकर शरीयत समझने की कोशिश कीजिए। अब अगर आपके इस्तिताअत से बाहर हो जाए तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको क़यामत में पूछने वाला नहीं है, तो आप घबराइए मत। जितना आपको समझ में आ रहा है और मेहनत कीजिए, उसमें कोताही मत कीजिए और सही अहादीस कुरान और सही अहादीस सहाबा इकराम के तरीके के मुताबिक समझने की कोशिश कीजिए। जरूर अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको राह दिखाएगा। और जहां तक आपने कहा कि अगर इसका सबूत नहीं है का मतलब क्या है, यानी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम के जमाने से सबूत होना जरूरी है। अकीदे के मसलों में, इबादत के मसलों में सबूत होना जरूरी है। अगर सबूत नहीं है तो हम ऐसा कोई काम नहीं कर सकते, नई नमाज नहीं ला सकते, नया रोजा नहीं ला सकते, कोई नया तरीका नहीं ला सकते, हज का कोई नया तरीका हम नहीं ला सकते। इस वजह से हमारे लिए जरूरी है कि हम इत्तिबा करें, बस फॉलो करें। हमको क्रिएट करने की जरूरत नहीं। क्रिएट करना है तो दुनियावी मामलात में क्रिएट कीजिए। आप साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर क्रिएटिविटी लाइए, लेकिन दीन के अंदर अल-यौमा अकमलतु लकुम, दीन कंप्लीट हो चुका है, इसके अंदर आपको क्रिएटिविटी लाने की जरूरत नहीं, सिर्फ इत्तिबा करना। इत्तिबा कर लोगे तो कामयाब हो जाओगे। तो सबूत नहीं है जब मैं कहता हूं तो उसका मतलब यह है मैं हुक्म लगाने से गुरेज करता हूं, ये शिर्क है, बिदअत है, हराम है, ये सारे के बजाय मैं पब्लिक को समझाना चाहता हूं कि जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम के जमाने में ना हो अकीदे और इबादत, खालिस इबादतों के मामलों में, तो उन सारे चीजों को जो भी साबित ना, उन सारे चीजों को अपनी जिंदगियों से निकाल दीजिए। यही मेरा आप लोग, यही मेरी गुजारिश होती है और यही मेरा प्रचार होता है। बाकी का ये कि कोई भटका हुआ है, फला बिदअत, काफिर, हम इतने स्टेज से ऐसे सारे चीजों को अवॉइड करते हैं। मुख्तसर ये है कि आपसे ये मैंने कहा, ऑथेंटिक सबूत ला लीजिए, अमल कीजिए, मुझे भी बताइए, मैं यहां से ऐलान करूंगा। कुरान मजीद पढ़ने के बारे में या इसाले सवाब के लिए कुरान मजीद पढ़कर बख्शवाने के लिए ऑथेंटिक सबूत फराहम कीजिए, मैं यहां से ऐलान करूंगा। लेकिन चूंकि इसका सबूत नहीं मिलता, लिहाजा मैं आपसे कह रहा हूं कि सबूत नहीं मिलता, हमको ये काम नहीं करना चाहिए, इसी में हमारे लिए बेहतरी है। और जहां तक कहा कि औलिया इकराम के खबरों पर जब हम जाते हैं, वो तो इतने ऊंचे लोग हैं औलिया इकराम, ये इतनी बुजुर्ग शख्सियतें हैं कि आप जाकर इनको बख्शवाएंगे तो इनके लिए आप गुस्ताखी कर रहे हैं। इनको क्यों बख्शवाएंगे? ये औलिया इकराम है अगर, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनको बख्श दिया है। अल्लाह ताला ने खुद कुरान मजीद में ऐलान किया है सूरह यूनुस नंबर 10 आयत नंबर 60 में कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा इनके ऊपर ना खौफ है, कुछ नहीं है, हम जाकर क्यों बख्शवाएंगे? बाद लोग कहते हैं हम नबी को बख्शवाते हैं, कुरान मजीद हम कुर्बानी बख्शवाते हैं। मुझे ताज्जुब होता है कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और औलिया किराम जो इतनी ऊंची शख्सियतें हैं, इनकी शान में हम गुस्ताखी कर रहे हैं। हम कौन होते हैं बख्शाने वाले? अगर हम अपने अमल से खुद अपने आप को ही बख्शवा लें तो बहुत बड़ी बात है। तो अलबत्ता दरूद शरीफ हम पढ़ते हैं, दुआएं करते हैं, उनके दर्जात बुलंद होते हैं, बख्शवाने का मसला नहीं है। उम्मीद के ये जहन में क्लियर रहेगा मसला। शुक्रिया मदनी साहब। नाज़रीन, और एक कॉलर लाइन पर मौजूद है, जानते हैं इनका सवाल क्या है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम खुर्शीद जहां आदिलाबाद से बात कर रही हूँ। जी खुर्शीद जहां साहिबा, बताइए क्या मदर सवाल। भाई। जी अल्लाह का एहसान है बहन, आपकी दुआओं से हैं अच्छे। मदर साहब को सलाम फरमाइएगा। वालेकुम जी, जी, अस्सलाम। मैं ऐसा रखा था आपकी महफिल में शामिल हो रही थी। जी जी, अल्लाह का एहसान है। आप बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बहुत काफी लोग मुझसे हो रहे हैं आपके प्रोग्राम से। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। और मदर साहब जरा गौर ध्यान से सुनिएगा, मेरे दो सवाल है। जी पहला सवाल तो यह है कि मैंने हदीस से सुना है कि मौत को कसरत से याद किया करें। जी
तो इसका तरीका बताइए मुझे कि मौत को कसरत से किस तरह याद किया जाए। बेहतर है और दूसरा सवाल मेरा ये है कि मतलब साहब, जब कोई बंदा खुदकशी की कोशिश करता है जी और उससे मौन बचा ले जाता है या खुद वो बच जाता है, जी, दोनों सूरतों में वो मौत के मुंह से निकल आता है। यकीनन मजबूरी तौर पर हम ये कहेंगे कि बगैर अल्लाह के हुक्म से किसी को मौत आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सच बात, लेकिन ये भी कहा जाता है कि ये एक आम बात मैंने सुन रखी है कि इस इक़दाम खुदकशी पर अल्लाह ताला उस बंदे को वैसी ही मौत अदा करता है। लोगों से सुना है मैंने, जी अगर एक बार कोई बंदा इक़दाम खुदकशी करता है, खुदकशी करने के जो कदम उठाता है, अल्लाह ताला बदले में उसको वैसी मौत देता है। नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, मैं यकीन नहीं करती ऐसी बात को, लेकिन फिर भी आपसे मदनी साहब से इसकी वजाहत करना चाहूंगी मैं। बेहतर बहुत शुक्रिया जी, आपकी भी दुआओं के हम मोहताज हैं बहन। बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया, बहुत सारी बातों का इजाला हो जाएगा। मौत को कसरत से किस तरह से याद किया जा सकता है साहब, ताकि हमारे दिलों का जंग दूर हो। और खुदकशी से मुताल्लिक़ अगर मौत अगर खुदकशी पर आती है तो वाक़ईतन जो हकीकी मौत है वो कैसे आती है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहन ने बुनियादी तौर पर दो सवाल किए हैं। एक तो है कि मौत को याद करने का मतलब क्या है। मौत को याद करने का मतलब ये नहीं है कि मौत आने वाली है, मौत आने वाली है, ऐसा उसका तरीका नहीं है। यानी मतलब ये है कि हम मरने वाले हैं तो हमने अपनी फ्यूचर प्लानिंग क्या की है। हमने जो फ्यूचर प्लानिंग का मतलब रखा है ये है कि एक बंगला बना ले, एक कार रहे, जिस एरिया में मैं रहता हूँ सबसे ज्यादा बेहतरीन मैं आगे रहूं और एक दिन मर जाऊं। ये कोई फ्यूचर प्लान, ये तो इनकम्प्लीट मैन है। रेमंड का कपड़ा पहनने या आम कोई भी कपड़ा या कोई कीमती कपड़ा पहनने से और एक आदमी अगर मुकम्मल कामयाब दुनिया में हो जाने से कंप्लीट नहीं होता जब तक कि वो खबर के बारे में सोचे। तो मौत को याद करने का मतलब यह है कि मौत के बाद मेरी जो जिंदगी आने वाली उसके लिए मैं क्या तैयारी कर रहा हूँ, ये मतलब है तैयारी। सही अमाल, नेक अमाल, कुरान और सही अहादीस सहाबा इकराम के तरीके के मुताबिक अमाल अपने पास बटोरिए। और उसके बाद आपने जो कहा इक़दाम खुदकुशी, जैसा कि कहा कि एक आदमी खुदकुशी करने जाता है या तो खुद फिर उसके बाद वापस आ जाता है या लोग बचा लेते हैं, तो ऐसे वक्त पर क्या है तकदीरी एतबार से मसला क्या है। उसके तकदीर में ये लिखा हुआ है कि वो कोशिश करेगा, कोई आकर उसको बचा भी लेगा। तकदीर का मतलब ये नहीं कि अल्लाह सुब्हानो, हमारे पास गलत फहमी है तकदीर के बारे में, वो ये है चूंकि अल्लाह ताला ने लिख दिया है लिहाजा हम ऐसा कर रहे हैं। जुमला ये सही नहीं, असल जुमला ऐसा है चूंकि अल्लाह को मालूम है कि बंदा क्या करेगा, क्योंकि अल्लाह अलीम है, अल्लाह खबीर है, अल्लाह सुब्हानो तआला क़यामत तक सारी चीजें जानने वाले। अल्लाह को मालूम है कि बंदे क्या करेंगे, अल्लाह ने उसको लिख रखा है। तो इसका मतलब बंदा क्या करेगा, खुदकुशी करेगा, कोई उसको आकर बचाएगा, क्योंकि अल्लाह को सारी चीजें मालूम है, अल्लाह ने तकदीर में उसको लिख दिया। बहुत आसान मसला है। और ये कि खुदकुशी करने वाला बच भी जाए तो फिर दोबारा करेगा, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकता है, हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन शरई एतबार से ऐसा अकीदा बनाना जायज नहीं है। एक आदमी को तौबा की तौफीक हो सकती है, बाद लोग बिगड़ जाते हैं, जब सुधरते हैं तो इतना बेहतरीन सुधर जाते हैं माशाअल्लाह से कि जो ऑलरेडी जो नेक लोग होते हैं उन पर तरस खाते हैं उनकी नेकी को देखकर। तो ऐसा कोई मसला भी नहीं है। तो ये अहम बात है, अपने दहन में रख लीजिए। बहुत शुक्रिया।